Hello viewers, today we will study factors affecting nutrient uptake. Up till now, we have studied passive theories of ion absorption and active theory of ion absorption or nutrient uptake. Now we will study what are the factors which affect this active and passive nutrient uptake. There are various factors which affect the ion absorption: temperature, oxygen, light, hydrogen ion concentration, presence of other ions, growth, aging. In the coming slides, we will discuss these all factors one by one. First is temperature. Absorption of mineral salt is mainly affected by the change in temperature. At an increase in temperature results in increase in absorption of the salt, but up to a optimum temperature, not beyond that. The temperature where the ion absorption is maximum for that ion, that is optimum temperature for that salt or that ion. Beyond that, if temperature still increases, then absorption is considerably inhibited. Why this happens? मीन्स एक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वहां तक जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो आयन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, बट अगर उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो वो डिक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैरियर या जो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू हो रहा है वो प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स एक हायर टेम्परेचर पे जाके डीनेचर हो जाती हैं. तो जो भी प्रोटीन्स उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मीन्स जो भी कैरियर प्रोटीन्स हैं, इनडायरेक्टली मीन्स जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं एनर्जी गेनिंग में हेल्प करते हैं उसके लिए, तो ये जो सारे एंजाइम्स या जो प्रोटीन्स हैं वो सारे डीनेचर हो जाते हैं हायर टेम्परेचर पे. तो इस वजह से डीनेचर होंगे तो उनकी जो एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली इनहिबिट हो जाती है. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर के बियॉन्ड अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जो आयन का एब्जॉर्प्शन है वो कम्प्लीटली इनहिबिट हो जाता है. दिस चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की प्रोसेस को भी ये अफेक्ट करता है. क्योंकि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स पे. और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होगी और जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी इंक्रीज होगा. तो इस टाइप से जो टेम्परेचर है वो एक्टिव एंड पैसिव बोथ एब्जॉर्प्शंस को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन आयन concentration. As change in hydrogen ion concentration change the pH of that solution or the soil. Change in hydrogen ion concentration affect the availability of ions to the plant because pH changes to the absorption of an ion and cation. An ion absorbs at different pH and cation absorbs at different pH. An ions mainly like boron absorb at low pH, means they like acidic soil. They absorb by the plant in the acidic soil, slightly acidic soil, and cations favor the basic soil, basic pH, in which the plant absorb these ions. So if hydrogen ion concentration change, it will affect the absorption of the ion. If pH is low, then it will favor the absorption of an ion, and if pH is high, that is basic pH, that will favor the absorption of cations. As light has no direct effect, but we studied that transpiration pool theory has also its role in absorption of ion. So light affect the transpiration, photosynthesis, so indirectly light also affect the salt absorption or ion absorption. The active salt absorption is inhibited by the absence of oxygen, because if oxygen is absent then there will be no respiration. If no respiration, then no energy, and if no energy, then no active transport. So in absence of oxygen, ion absorption is also stopped. Growth. In different period of growth, in different phases of growth, the ion absorption differs.
In active cell division, elongation phase, developmental process promote the absorption of mineral salt. Means जो भी प्लांट की ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो रिक्वायरमेंट है आयंस की या मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती है, और जिसके अकॉर्डिंग जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग जो प्लांट है आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो उनका ग्रोथ पीरियड होता है, जो इलोंगेशन पीरियड है या जो फ्रूटिंग पीरियड है, फ्लावरिंग पीरियड है, रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है, तो उस टाइम क्या है, एक्टिव सेल डिवीजन या फिर एक्टिव सेल डिवीजन है जो वेजिटेटिव पीरियड में ग्रोथ पीरियड होता है, तो उस टाइम पे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन है वो ज्यादा होता है एज कंपेरेटिवली टू द पैसिव ग्रोथ पीरियड। इंटरेक्शन विद अदर आयन्स मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वन आयन ऑल्सो अफेक्ट द absorption of other ion in the medium. It may be retard the absorption of other ion or it may be accelerate the absorption of other ion. एक साइंटिस्ट थे वायट्स, they demonstrate absorption of potassium affected by the presence of calcium, magnesium and other polyvalent ion in the soil solution. तो जो पोटाशियम का एब्जॉर्प्शन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाता है। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है प्लांट में तो प्लांट धीरे धीरे पोटेशियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी शो करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट को कैल्शियम और मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट भी होगी। इसी टाइप से एपिस्टिन ने इंटरेक्शन ऑफ पोटेशियम, सीजियम, लिथियम एंड सोडियम इनको शो किया एज ए कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग साइट ऑन द कैरियर। जो ये आयंस है इन सबके कॉम्पिटिटिव साइट मींस जो एब्जॉर्ब होगा, कैरियर इनको एब्जॉर्ब करेगा वो सेम साइट पे एब्जॉर्ब करेगा। तो सेम साइट पे एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो गए। अगर पोटेशियम को जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी उसको पहले एब्जॉर्ब करेगा, तो इस वजह से अगर पोटेशियम को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी एफिशिएंसी अदर आयंस के कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे को कंपीट करेंगे। तो इस टाइप से जो आयंस हैं वो दूसरे आयंस का जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज भी करते हैं और उसके कुछ अदर आयंस के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज भी करते हैं बाय कॉम्पिटिंग विद देम। एजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन। As we all know, absorption of iron takes place through the roots. And as the root mature, it increases the surface area. Because जैसे ही root mature होगी तो उसका जो surface area वो increase हो जाएगा, deep in the soil जाएगी, उसका जो प्राइमरी रूट्स है या सेकेंडरी रूट्स है, जो रूट हेयर्स है वो लार्ज इन नंबर होंगे। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, बट उसके साथ साथ में उसकी एक डेफिशिएंसी भी है, उसके जो एब्जॉर्प्शन हो वो डिक्रीज भी होता है साथ साथ में। क्यों, जैसे ही रूट मैच्योर होती है तो मैच्योर होने के बाद क्या होगा, उसमें सबरीन या लिग्निन का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, और जिसमें सबरीन का डिपोजिशन हो जाता है उसको बोलते हैं सबराइजेशन। तो जहां जिस एरिया में रूट के सबरीन का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा वहां पे जो मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल स्लाइटली नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन होगा वहां से। तो इसके एक तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उस साइड से उसको इंक्रीज कर रहा है, बट अगर हाईली सबराइजेशन है तो वो साल्ट के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस भी कर रहा है। तो जो एजिंग की प्रोसेस है वो भी साल्ट एब्जॉर्प्शन को या आयन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। तो ये जो सारे फैक्टर्स थे जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन या न्यूट्रिएंट अपटेक को अफेक्ट करते हैं। थैंक्स।